رات کے تقریباً 2 بجے کا وقت تھا۔ شہر کی فضا خاموش تھی، گلیوں میں سناٹا چھایا ہوا تھا، ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ بس کبھی کبھار کسی آوارہ کتے کے بھونکنے کی آواز اس خاموشی کو چیر کر گزر جاتی۔ ایسے میں صدیقی اپنے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھا کمپیوٹر پر کام میں مصروف تھا۔ کمپیوٹر کی نیلی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، آنکھوں کے نیچے ہلکے اور ماتھے پر پسینہ صاف ظاہر کر رہا تھا کہ وہ کئی گھنٹوں سے جاگ رہا تھا۔ صدیقی کا کام آن لائن فری لانسنگ کا تھا۔ وہ مختلف ویب سائٹس پر کلائنٹس کے لیے کام کرتا تھا، کبھی گرافک ڈیزائن، کبھی ڈیٹا انٹری، کبھی ویب ڈیولپمنٹ۔ زندگی کچھ مشکل ضرور تھی، مگر وہ حوصلہ نہیں ہارا تھا۔ اس کے والدین وفات پا چکے تھے اور اب وہ اپنے دادا کے پرانے مکان میں اکیلا رہتا تھا۔ اس رات بھی صدیقی کسی پروجیکٹ کی ڈیڈ لائن پوری کرنے کی کوشش میں مصروف تھا کہ اچانک دھماکے کی ہلکی سی آواز آئی۔ آواز بالکل گھر کے باہر کے دروازے کے قریب سے آئی تھی۔ اس نے چونک کر مانیٹر سے نظریں ہٹائیں۔ چند لمحے سناٹا چھایا رہا، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے کان لگا کر سنا۔ چونکہ سردیوں کی گہری رات تھی، صدیقی پہلے تو ڈرا، مگر پھر مکمل خاموشی چھا گئی۔ شاید کوئی پٹاخہ پھٹ گیا ہوگا، اس نے خود سے کہا۔ کندھے اچکا کر پھر سے ماؤس پکڑ لی۔ صدیقی کا ذہن پہلے ہی کام کے دباؤ میں تھا۔ وہ ایسے چھوٹے واقعات پر زیادہ دھیان نہیں دیتا تھا۔ اس نے وہ بات دل سے نکال دی اور دوبارہ کام میں جٹ گیا۔ صبح جب سورج کی روشنی کھڑکی کے پردوں سے اندر آنے لگی تو صدیقی نے جمائی لی، ماؤس بند کیا اور اٹھ کر باہر آیا۔ جیسے ہی اس نے گیٹ کی طرف قدم بڑھایا، عجیب منظر اس کے سامنے تھا۔ دروازے کے ساتھ لگا ہوا گیس کا میٹر غائب تھا۔ صدیقی ایک پل کے لیے ساکت رہ گیا۔ یہ کہاں گیا؟ اس نے نظریں ادھر ادھر دوڑائیں۔ دیوار کے پاس گیس پائپ خالی کھڑا تھا، جبکہ نیچے زمین سے گیس کے پائپ سے گیس آ رہی تھی، جسے اسی وقت صدیقی نے ایکسرو رینج سے بند کیا، اور دیوار پر ہلکا سا کالا نشان بھی موجود تھا، شاید اسی وقت کا جب رات کو دھماکے کی آواز آئی تھی۔ تو وہ دھماکہ یہ تھا۔ صدیقی کے ذہن میں خیال آیا، یہ تو کسی نے میٹر ہی چرا لیا۔ وہ گیس کے دفتر جانے کا ارادہ کر چکا تھا، مگر پہلے اس نے گھر کے پڑوسیوں سے پوچھا۔ 1 2 3 سب نے ایک ہی جواب دیا، ہم نے کچھ نہیں دیکھا بیٹا، رات کو بس ایک آواز آئی تھی، پر ہم سمجھے شاید کوئی چیز گر گئی ہوگی۔ مایوس ہو کر صدیقی گیس آفس پہنچا۔ صبح کا وقت تھا، دفتر میں رش زیادہ نہیں تھا۔ وہ سیدھا کاؤنٹر پر گیا اور وہاں بیٹھے ایک درمیانے عمر آفیسر سے مخاطب ہوا۔ جناب، میرے گھر کے باہر لگا ہوا گیس میٹر چوری ہو گیا ہے، میں شکایت درج کرانا چاہتا ہوں۔ آفیسر نے اپنی اینک کے پیچھے سے صدیقی کی طرف دیکھا، پھر تھوڑا اکتاہٹ بھرے لہجے میں بولا، صدیقی صاحب، ایسی صورت میں آپ کو پہلے تھانے میں جا کر FIR درج کرانی ہوگی۔ جب تھانے سے رپورٹ لے آئیں گے تبھی ہم کوئی ایکشن لے سکتے ہیں۔ لیکن سر، میٹر تو سرکاری ہے نا؟ صدیقی نے الجھ کر کہا۔ جی، مگر چوری کا معاملہ پولیس کے دائرے میں آتا ہے، آپ وہاں جائیں۔ کوئی دوسرا راستہ نہ دیکھ کر صدیقی وہاں سے سیدھا تھانے پہنچ گیا۔ تھانے کا منظر ہمیشہ کی طرح بے ترتیب تھا۔ لوگ ادھر ادھر کھڑے تھے، کچھ زمین پر بیٹھے شکایت لکھوا رہے تھے۔ صدیقی ایک کمپیوٹر ڈیسک کے پاس گیا، جہاں ایک نوجوان لڑکی بیٹھی تھی جو پولیس کے سسٹم میں شکایات درج کر رہی تھی۔ میرا گیس میٹر چوری ہو گیا ہے، شکایت درج کرانی ہے۔ آپ کا نام؟ محمد صدیقی۔ پتہ؟ محلہ اسلام نگر، مکان نمبر۔ اس نے تفصیلات لکھوائیں۔ لڑکی نے سر ہلایا اور کہا، ٹھیک ہے، شکایت درج ہو گئی ہے، FIR 3 دن کے اندر مل جائے گی۔ صدیقی نے شکر ادا کیا، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ 3 دن کتنے طویل بننے والے ہیں۔ اگلے دن وہ تھانے گیا تو منشی نے کہا، فائل ابھی SHO صاحب کے پاس ہے، کل آنا۔ دوسرے دن گیا تو جواب ملا، سر آج میٹنگ میں ہیں، کل صبح آنا۔ تیسرے دن شام کو بھی یہی بہانہ۔ آخر صدیقی نے جھنجھلا کر کہا، بھائی آخر FIR میں اتنی دیر کیوں؟ منشی نے کرسی پر جھک کر آہستہ سے کہا، دیکھیے صدیقی صاحب، بغیر فیس کے تو کام نہیں ہوتا۔ 8,000 روپے دیں تو آج ہی FIR ہو جائے گی۔ صدیقی کا چہرہ بجھ گیا۔ میرے پاس تو اتنے نہیں ہیں، میں ایک عام مزدور بندہ ہوں۔ منشی نے لاپرواہی سے کہا، تو پھر انتظار کریں، جب تک فیس نہیں ملتی فائل رکے گی۔ صدیقی چپ چاپ تھانے سے باہر نکل آیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ رشوت نہیں دے سکتا، مگر وہ ہار بھی نہیں مان سکتا تھا۔ اسی وقت اس نے سیدھا DSP کے دفتر کا رخ کیا۔ دروازے پر پہرا تھا، مگر صدیقی نے اپنی بات پہنچا ہی دی۔ جناب، میرا گیس میٹر چوری ہو گیا ہے، مگر تھانے والے FIR تب درج کر رہے ہیں جب میں انہیں 8,000 دوں۔ میرے پاس کچھ نہیں، میں ایک غریب انسان ہوں۔ DSP صاحب نے فائلوں سے نظریں اٹھائیں، ان کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ محمد صدیقی۔ کس تھانے کا معاملہ ہے؟
इस्लाम नगर। डीएसपी ने फोन उठाया, एसएचओ को कॉल की। एसएचओ साहब, सिद्दीकी नाम का एक शहरी आया है, इसकी एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुई, फौरन करवाएं और बगैर किसी पैसे के। मैं कल खुद चेक करूंगा। फोन बंद हुआ तो सिद्दीकी ने शुक्रगुजार निगाहों से डीएसपी को देखा। बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह आपको जजा दे। अगले दिन जब वो थाने पहुंचा तो मुंशी का चेहरा बुझा हुआ था। उसने चुपचाप फाइल निकाली, कागज पर दस्तखत किए और सिद्दीकी के हवाले कर दी। ये रही तुम्हारी एफआईआर। सिद्दीकी के दिल में एक सुकून सा उतर आया, मगर उसे मालूम नहीं था कि ये तो अभी कहानी की शुरुआत है। आगे एक ऐसा सफर शुरू होने वाला है जिसमें 6 माह की दौड़ धूप, सरकारी कागजात, दादा की विरासत और जमीन की तस्दीक सब शामिल थे। उसे अंदाजा नहीं था कि एक गैस मीटर का गायब होना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाएगा। सिद्दीकी के हाथ में अब एफआईआर की कॉपी थी। उसने सुख का सांस लिया। ये मरहला आसान नहीं था। 3 दिन की थकन, पुलिस के रवैये और रिश्वत के मुतालबे ने उसके हौसले आजमा लिए थे, मगर अब उसके पास वो कागज था जो गैस ऑफिस में पेश करना जरूरी था। अगली सुबह वो सीधा गैस ऑफिस पहुंचा। ऑफिसर मेज पर बैठा कागजात चेक कर रहा था। सिद्दीकी ने मुअद्दिबाना लहजे में कहा, जनाब ये एफआईआर है जो आपने मांगी थी। ऑफिसर ने फाइल ली, चंद लम्हे देखने के बाद कंप्यूटर पर कुछ चेक किया, फिर बोला, ये मीटर किस नाम पर था? सिद्दीकी ने जवाब दिया, मेरे दादा हाफिज अब्दुल वाहिद सिद्दीकी के नाम। ये सुनकर ऑफिसर ने भवें से केड़ी और कहा, तब तो मसला कुछ पेचीदा है, क्योंकि अगर मीटर आपके दादा के नाम था तो अब नए मीटर के लिए हमें उनके कानूनी वारसों की इजाजत दरकार होगी। लेकिन जनाब, दादा तो बहुत पहले वफात पा चुके हैं और ये मकान मेरी मलकियत में है। कागजात दिखाएं। सिद्दीकी ने घर की रजिस्ट्री की कॉपी निकाली। ऑफिसर ने उसे देखा, फिर बड़ी सर्द मेहरी से कहा, ये रजिस्ट्री काफी नहीं, आपको अपने दादा की तमाम औलाद यानी उनके बेटों बेटियों या अगर वो भी फौत हो चुके हैं तो उनके बच्चों सबकी इजाजतनामा यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की तस्दीक लाना होगी। सिद्दीकी के चेहरे से रंग उड़ गया। मगर सर, ये सब तो मुख्तलिफ शहरों में रहते हैं, कोई कराची, कोई लाहौर, कोई अंदरूने सिंध। ऑफिसर ने शाने उचकाए। हमें कानून की पाबंदी करनी होती है सिद्दीकी साहब, इजाजतनामे के बगैर मीटर का नाम तब्दील नहीं किया जा सकता। वो फाइल बंद करके उठ गया। सिद्दीकी थके कदमों से बाहर निकला। दफ्तर के दरवाजे पर खड़े चौकीदार ने पूछा, क्या हुआ भाई? क्या बताऊं, मीटर तो गया, अब लगेगा भी नहीं जब तक दादा की औलाद से इजाजतनामे ना लाऊं। चौकीदार ने हल्की हंसी के साथ कहा, बस सरकारी दफ्तर है भाई, यहाँ हवा भी इजाजत लेकर चलती है। सिद्दीकी के लबों पर एक उदास मुस्कुराहट आई। जानता था कि अगर अब रुक गया तो सब जाया हो जाएगा। उसने तहिया कर लिया कि जो भी हो सब इजाजतनामे हासिल करेगा। अगले दिन से ही वो राब्ते करने लगा। एक भाई कराची में, एक भाई लाहौर में, एक फुप्पी दुनियापुर में। सबको फोन किए, सारी सूरत हाल बताई। किसी ने कहा, हमें डाक से फॉर्म भेज दो, दस्तखत करके वापस करेंगे। किसी ने कहा, हम शहर नहीं आ सकते, खुद आकर ले लो दस्तखत। यूं सिद्दीकी ने एक तवील सफर शुरू किया, कभी ट्रेन से, कभी बस से, कभी मोटरसाइकिल पर। वो दिन भर सफर करता, दस्तखत लेता, तस्दीक कराता और रात को वापस आकर अगला प्लान बनाता। उसके जूते घिस गए मगर हौसला नहीं। 6 माह की भागदौड़ के बाद आखिरकार उसके पास तमाम इजाजतनामे मौजूद थे। हर रिश्तेदार के दस्तखत, अंगूठे की तस्दीक और शनाख्ती कार्ड की कॉपी। उसने कागजात को एक फाइल में तरतीब से रखा और सुबह सवेरे गैस ऑफिस पहुंचा। ये लीजिए तमाम इजाजतनामे और दादा की वफात का सर्टिफिकेट। ऑफिसर ने मुस्कुराते हुए फाइल ली, मगर जल्द ही चेहरे पर संजीदगी हो गई। 1 मिनट सिद्दीकी साहब, यहाँ तो मकान की जमीन आपके नाम पर रजिस्टर्ड नहीं लग रही, रजिस्ट्री में कुछ और नाम दर्ज हैं। सिद्दीकी ने चौंक कर कहा, क्या मतलब? जमीन तो मेरी है, ये मेरा घर है। ऑफिसर ने जवाब दिया, देखिए रजिस्ट्री में अगर नाम आपका नहीं तो हमें तहसीलदार और पटवारी से तस्दीक चाहिए कि आप ही इस जमीन के मौजूदा मालिक हैं, तभी मीटर आपके नाम हो सकता है। सिद्दीकी के सर में जैसे हथौड़ा पड़ा। अभी वो दादा की औलाद से इजाजतनामे हासिल करने की थकन से निकला भी नहीं था कि एक नई दीवार सामने आ गई। उसने हिम्मत जमा की, फाइल उठाई और सीधा तहसील ऑफिस जा पहुंचा। वहां दर्जनों लोग अपनी अपनी फाइलों के साथ कतार में खड़े थे। पसीना, शोर, चीख पुकार, सरकारी दफातर का रिवायती मंजर। पटवारी को जब सिद्दीकी ने अपनी बात बताई तो उसने बेनियाजी से कहा, कल आना,
आज दस्तखत नहीं होंगे। सर मैं बहुत दिनों से भाग दौड़ कर रहा हूँ, सिर्फ एक तस्दीक चाहिए। पटवारी ने मेज पर पड़ा मग उठाकर चाय का घूंट लिया और बोला, अगर जल्दी चाहिए तो खिदमत कर दो। सिद्दीकी समझ गया कि खिदमत का मतलब क्या है, मगर इस बार भी उसने पैसे देने से इनकार किया। मैं कानून के मुताबिक चाहता हूँ, रिश्वत नहीं दूंगा। पटवारी ने तंजिया हंसी के साथ कहा, फिर कानून के मुताबिक इंतजार भी करोगे? सिद्दीकी थका हुआ ऑफिस से निकला, मगर इत्तेफाक से उसी वक्त तहसीलदार साहब वहाँ से गुजर रहे थे। उनकी नजरें सिद्दीकी पर पड़ी। क्या मसला है जवान? सिद्दीकी ने सारी कहानी बयान कर दी। तहसीलदार ने फौरन पटवारी को बुलाया, फाइल देखी और चंद ही लम्हों में दस्तखत पर तस्दीक कर दी। लो भाई, अब कोई मसला नहीं, अगली बार याद रखना, ईमानदारी से बात करो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। सिद्दीकी के चेहरे पर थकन के साथ साथ इत्मीनान भी था। उसी शाम वो सारी तस्दीक शुदा फाइल लेकर वापस गैस ऑफिस गया। ऑफिसर ने कागजात चेक किए, एक एक दस्तखत पर मोहर लगाई और कहा, ठीक है, अब आपकी फाइल मुकम्मल है। जिलाई ऑफिसर आकर मौके की तस्दीक करेंगे, फिर आपके नाम पर नया मीटर जारी होगा। कितने दिन लगेंगे सर? बस 3 माह के अंदर सब कुछ हो जाएगा। 3 माह, ये लफ्ज सिद्दीकी के जहन में गूंजने लगा। उसे लगा जैसे फिर एक नया इम्तिहान शुरू हो गया हो, मगर अब वो आदी हो चुका था। वक्त गुजरता गया, कभी गैस ऑफिस से फोन आता, कभी कोई कागज दोबारा मांगा जाता, कभी टीम आकर जगह की पैमाइश करती। हर कदम पर नहीं रुकावट, मगर सिद्दीकी ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। 3 माह बाद एक दिन गैस ऑफिस से फोन आया, सिद्दीकी साहब, जिलाई ऑफिसर कल आपके घर आएंगे मीटर के मकाम की तस्दीक के लिए। उसकी आंखों में चमक आ गई। 6 माह की दौड़, 3 माह का इंतजार, अब शायद ये सफर खत्म होने को था। वो रात फिर एक तवील रात बन गई, मगर इस बार वो खौफ की नहीं, उम्मीद की रात थी। सिद्दीकी की जिंदगी के गुज़श्ता 9 महीने गोया इम्तिहानों की जंजीर थे। हर कागज, हर दस्तखत, हर मोहर एक नई आजमाइश बनकर सामने आती, मगर उसने हौसला नहीं हारा। उस दिन जब गैस ऑफिस से फोन आया कि जिलाई ऑफिसर कल आपके घर आएंगे, तो उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो शायद बरसों बाद लौटी थी। उस रात सिद्दीकी ने घर साफ किया, दरवाजे के करीब वो जगह भी साफ कर दी जहां खाली गैस पाइप घर से बाहर निकले हुए थे। उसने दीवार के निशान मिटाने के लिए थोड़ा प्लास्टर भी करवा लिया। उसकी ख्वाहिश थी कि जब अफसर आए तो घर साफ सुथरा लगे। सुबह सवेरे सूरज तुलू होते ही उसने वजू किया, नमाज पढ़ी और दुआ मांगी, या अल्लाह, आज के दिन को मेरे लिए आसान बना दे। इतनी मेहनत के बाद अब कामयाबी नसीब फरमा। तकरीबन 10 बजे एक सफेद सरकारी गाड़ी गली में दाखिल हुई। गाड़ी के दरवाजे से एक दरमियाने उम्र के जिलाई ऑफिसर और 2 लाइन मैन उतरे। सिद्दीकी ने फौरन आगे बढ़कर अदब से सलाम किया। जी सिद्दीकी साहब? जी सर, मैं ही हूँ। अफसर ने फाइल खोली, चंद कागजात देखे, फिर घर के बाहरी दीवार का जायजा लिया। यही मीटर लगना है ना? जी, यही जगह पहले भी थी। लाइनमैन ने दीवार के नीचे निशान देखा, पाइप के जोड़ों का जायजा लिया, फिर बोला, सब दुरुस्त है, सिर्फ नया वॉल्व लगेगा। जिलाई ऑफिसर ने दस्तखत की और कहा, ठीक है, तस्दीक मुकम्मल, फाइल वापस ऑफिस भेज दो, 4 दिन में नया मीटर लग जाएगा। सिद्दीकी के दिल से जैसे बोझ उतर गया। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया, लेकिन वो अभी पूरी तरह मुतमईन नहीं था। उसे इल्म था कि 4 दिन सरकारी जबान में कभी कभार 4 हफ्ते बन जाते हैं। फिर भी उस दिन वो मुतमईन दिल के साथ घर वापस आया। दोपहर के वक्त चाय का कप हाथ में लिए वो कुर्सी पर बैठा अपने सफर को याद करने लगा। रात 2 बजे का धमाका, गैस मीटर का गायब होना, थाने के चक्कर, मुंशी की रिश्वत, डीएसपी की मुदाखिलत, ये सब कुछ किसी ख्वाब की तरह लग रहा था, मगर ख्वाब नहीं, हकीकत थी जो अब अपने इख्तिताम के करीब थी। चौथे दिन सुबह जब वो अभी नाश्ता करने बैठा ही था, दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? गैस डिपार्टमेंट से आए हैं, मीटर लगाना है। सिद्दीकी के चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ गई। वो जल्दी से बाहर निकला। 2 कारकुन सामान के साथ खड़े थे, एक के हाथ में नया मीटर, दूसरे के पास औजारों का बैग। ये दस्तखत कर दें, हम मीटर लगाते हैं। जी जी जरूर। थोड़ी देर बाद दीवार पर नया गैस मीटर चमकने लगा। लाइनमैन ने सिद्दीकी को समझाया, ये नया सिस्टम है, इसमें स्मार्ट रीडिंग होती है, अब बिल खुदकार तरीके से बनेगा। सिद्दीकी ने शुक्र के जज्बात के साथ हाथ जोड़े। अल्लाह आपको जजा दे। आपको अंदाजा नहीं मैंने उस दिन का कितना इंतजार किया है। जब वो गए तो सिद्दीकी देर तक उस नए मीटर को देखता रहा। वो एक छोटी सी चीज थी, मगर उसके लिए ये किसी इनाम से कम ना थी। उसने अपनी तमाम मेहनत, वक्त और अज़म इसमें झोंक दिया था। उसी वक्त पड़ोसी अहमद साहब आए। अरे सिद्दीकी, आखिर तुम्हारा मीटर लग गया, बहुत मुबारक हो। जी अहमद भाई, आखिरकार सब्र का फल मिल ही गया।
मैं तो समझा था तुम हार जाओगे, मगर तुमने हिम्मत नहीं छोड़ी। सिद्दीकी ने मुस्कुराकर कहा, अहमद भाई, सच कहूँ तो मैं कई बार हारने के करीब था, मगर हर बार मेरी माँ की आवाज आती थी। अगर मैं भी हार गया तो इंसाफ कहाँ जाएगा। रात को वो वही कुर्सी पर बैठा जहाँ से ये सफर शुरू हुआ था। सामने वही कंप्यूटर था, मगर आज इसकी स्क्रीन से ज्यादा चमक इसके दिल में थी। उसने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। कभी कभी जिंदगी तुम्हें एक छोटे से मसले के जरिए बताती है कि सब्र और हौसला ही असल दौलत है। फिर उसने कंप्यूटर ऑन किया, अपने क्लाइंट को ईमेल लिखी, मैं आज काम दोबारा शुरू कर रहा हूँ। कुछ दिनों की मसरूफियत थी, मगर अब सब ठीक है। ये सिर्फ एक जुमला नहीं था, बल्कि एक ऐलान था कि उसने नाइंसाफी, करप्शन और मुश्किलात के खिलाफ जीत हासिल कर ली थी। अब उसके घर के दरवाजे पर नया गैस मीटर लगा था, मगर दरअसल उस दरवाजे के पीछे एक नया सिद्दीकी जन्म ले चुका था, जो अब हर रुकावट का सामना हिम्मत से करेगा। आखिर में उसने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा,